अरे यार, एक महीने में एग्जाम है। अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करूं, कैसे होगा मेरा। Don't worry, we'll cover all these things in this video. I'll keep it very short so that you don't waste much time here. I'll provide as much as value, and I'll just tell you the top things that you should do in the last month and कैसे मैंने क्या क्या किया. So let's start, without wasting any time. The first thing that you need to start doing is कि भाई सबसे पहले सबसे जरूरी चीज पासपोर्ट लो, उसमें अपना नाम चेक करो, सरनेम और एक्चुअल नेम, एंड उसको अपने रजिस्ट्रेशन नेम से चेक करो, क्योंकि माय सरनेम में मेरे पापा का नाम था, एंड व्हेन आई वेंट टू राइट द एग्जाम दे सेड यू कैन नॉट राइट योर एग्जाम बिकॉज द पासपोर्ट नेम इज नॉट मैचिंग, राइट, एंड दैट इज द अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन इन सीएफए. एंड उन्होंने बोला कि भाई कॉल दी सीएफए हेल्पलाइन, एंड व्हेन आई कॉल्ड देम दे सेड आई विल ट्राई बट आई कैन नॉट अश्योर यू एनीथिंग. You might have to buy the deferral program, which is 50,000 rupees as of that time. Currently, if you do it, it would cost you पूरा fees 1.3 lakhs, right? Current exchange rate के हिसाब से. So don't do this, कुछ भी हो भाई, अभी के अभी चेक करो पासपोर्ट का जो नेम है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए. जो हो, नहीं हो तो अभी कॉल करके ट्राई टू अपडेट, भाई एक महीने में हो जाना चाहिए. This is the first thing. And then the second thing that you should start doing, in the revision part is that you should stop revising, as in stop learning as of now. Start giving mocks. Feb 4th को मेरा एग्जाम था, एंड Jan 4th को मैंने देना चालू कर दिया था सारे जो भी मॉक्स. आई स्टॉप लर्निंग, राइट. उस दिन से मैंने फर्स्ट मॉक वाज नॉट सो गुड, cause I was getting around 30 to 40% in that first mock. I was actually seeing the question and answers. I was actually not even revising it. But then second mock में 50, then third में 60, then 67 to 70 के around average कर रहा था. The last month, why I was so scared, that I was getting so low. I used to study for 5 6 hours because it was simply like I was actually giving mocks, and then I was checking answers. Giving mocks, it used to take around 3 hours. Checking answers, it used to take around 2 hours. So I was doing that time without needing any motivation. That's how scared I was. So going on, last 2 weeks तक, 2 week तक पहले से I was getting around 67 70%. And exactly 2 weeks before मैंने Sunday को, cause I have college also, तो मैंने Sunday को I gave my first official mock. I got around 70 71 72% average around both. And that is when, because I heard from seniors कि भाई इतना आए तो you're in the safe zone. So even your mission should be to get around this much percentage, because that is like the best. And then second mock, by I would recommend you to give 1 week before the exam. So I gave it on a Sunday, obviously, and I got around 78 or 80 percentage in the second mock, and that is when I was like kind of थोड़ा सा बढ़ गया था. I was not learning in the last week, but you shouldn't do that. इतना अगर 70 to 80 के बीच में आ रहा है, you should be happy, and you should try to just consistently do that. And one more thing, I'll even show you in my computer, how to take notes, as in by pictures रखो rather than if you're, जैसे कोई क्वेश्चन समझ नहीं है उसका पिक्चर लेके रख लो. और एक और चीज है, अगर तुम लोग कोई गलती कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इन एथिक्स एनीथिंग, तो भाई उस गलती को अगर तुम लोग को लग रहा है कि बार बार करोगे, तो एक नोट में लिख के रख लो ना कि भाई एथिक्स में आई शुडंट यूज दिस प्रीफिक्स अफिक्स, फॉर एग्जांपल सीएफए, आई एम अ सीएफए और व्हाटएवर, इसको लिख के रख लो भाई नोट में. एंड लास्ट डे आर सो बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम, 1 2 घंटा लगेगा, जस्ट रीड दिस, डोंट रिवाइज इन द लास्ट 1 day. Obviously, you will not have time to revise it. You will just have to revise formulas and whatever you're writing in this paper, कि भाई मैंने ये गलती किया, and I'll have to correct this and this. And this is something that you should do, कि भाई गलती को लिख के रखो. Other than that, there is nothing. Don't watch one shot in the last 7 days. That is the worst decision that you could ever take. Don't watch one shot. It just clearly shows that you're not ready for the exam, and you're just giving it because you have paid the fees. Don't do this. Last week में भाई जितने mocks हो रहे, दो mistakes analyze करो, and बस chill रहो. Last week में कोई tension मत लो भाई. मैं मुश्किल से 2 3 घंटे पढ़ता था लास्ट वीक में. I was actually scrolling reels. That's bad. But मैं यही सब करता था लास्ट वीक में, and this is all the things that you should focus on. So before winding up, I'll just show you, what the screenshot I was talking about. Okay, so I'll just quickly, go into this folder. जिसमें भाई, first of all, this is, the folder that I used, last week में. For example, ये सब मैंने यूज किया था एकदम स्टार्टिंग में भाई. जैसे देख सकते हो, एथिक्स में जाऊंगा तो जो जो क्वेश्चंस मैंने गलत किया, तो ये ऑफिशियल पोर्टल किया है. तो अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन खोलूं, तो भाई ये क्वेश्चन मेरे को लगा कि मैं भूल जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया रादर देन राइटिंग, बिकॉज दिस इज जस्ट अ मोर एफिशिएंट वे. So obviously my laptop is not working properly, but anyways,
दिस इज द वन फोटो आई वांटेड टू शो यू। तो भाई ऐसे मैंने सारे सब्जेक्ट के रखे हैं। वन सेकेंड, या सो कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में हर एक रीडिंग का मैंने अलग से बना के रखा। कुछ समझ नहीं आता उसके आंसर जो चैट जीपीटी समझे वो भी रखा था। सो हैड एवरीथिंग। एंड देन दिस इज फॉर द लास्ट वीक दैट आई एम शोइंग यू, राइट? तो भाई इसमें मैंने वही क्वेश्चंस रखे जो मैं कंसिस्टेंटली गलत कर रहा था, जो चाहे हो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आई वाज लाइक कंसिस्टेंटली जब देखो भाई ये एक क्वेश्चन गलत हो ही रहा है। तो दिस क्वेश्चन भाई मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया और अलग नाम से सेव कर लिया, कोई भी नाम रख लो। एंड ये क्वेश्चन मैं लास्ट वीक या फिर हर 2-3 दिन में एक बार देखते ही रहता था कि भाई ये गलत कर रहा हूँ, इसको नोट में लिख लेता हूँ या फिर याद करते रहो जब तक सही नहीं हो। ये देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है फंड इससे बचते हैं प्रॉपरली। सो इसमें भी एक्सप्लेनेशन लगा के रखा है मैंने, सॉल्यूशंस रखे हैं। सो दिस इज वन वे, ये एकदम लास्ट वीक में पढ़ना है। और वन मोर थिंग लास्ट वीक में जो करना है इज नोट्स में लिख के रहो क्या क्या गलती कर रहे हो, एंड उसको लास्ट डे में पढ़ना है। सो दीज आर दी ओनली थिंग्स दैट आई डिड। एंड लास्ट डे एग्जाम डे में जाके वहां मत पढ़ो, चिल रहो, जस्ट टेक योर कैलकुलेटर इफ यू वांट इट। आई जस्ट पिन डाउन द लिंक इफ यू वांट द कैलकुलेटर। बुक भी चाहिए तो बस फॉर्मूलाज के लेके जाओ, बाकी कुछ नहीं। कैलकुलेटर, पासपोर्ट एंड नथिंग एल्स यू नीड। पेन भी वही लोग दे देंगे, नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स भी वही लोग दे देंगे। एंड द स्टाफ आई हैड एक्सपीरियंस इज लाइक वाज ऑसम, सो यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट दैट। जस्ट गो देयर विथ योर चिल माइंड, ईट समथिंग। थोड़ा सा ब्रेक के लिए ले लो, बीच में देते हैं तो फ्रूट्स, प्रोटीन बार जो चाहिए ले लो। एंड बस इतना ही है भाई। यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम मोर। एंड this last week is more crucial, last month is more crucial, so focus. And if you have any doubts, comment, I'll clear it as soon as possible. Bye bye and keep reading.